to study the cell. So this is the basically a cell. You know what is a cell? A basic structural and functional unit of life. Cell. Let us study a cell, nervous cell. It is कुछ ऐसा रहता है, nervous cell में axon एक लंबा ट्यूब जैसा रहता है, correct? Now inside the axon there is a liquid. What is the liquid named as? Cytoplasm रहता है ना, cell के अंदर जो liquid है उसको क्या बोलते हैं? Cytoplasm. What is this? This is the axon. इसका नाम क्या है? Axon. तो एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसका नाम क्या होगा? एक्सोप्लाज्म. क्या नाम होगा? एक्सोप्लाज्म. ठीक है. और उसका जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूरिलेमा. लेमा. द कवरिंग ऑफ द एक्सॉन इज कॉल्ड एज न्यूरिलेमा. ये एक्सोलेमा भी बोलते हैं बट न्यूरिलेमा याद रखो. ओके. नाउ क्या होता है? इनसाइड द लिक्विड the exoplasm is also called as intracellular fluid. सेल के अंदर वाला लिक्विड fluid also called as cytoplasm. और जो फ्लूइड कोई भी सेल के बाहर भी तो लिक्विड होता है, और जो बाहर लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. बाहर जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? we call it as extra cellular fluid. इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर fluid. I hope all of you got it. Correct. इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है. क्या है? This is the diagram of axon. लंबा रहता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल रहता है, लंबे रहते हैं वो. एक्सॉन के जो न्यूरॉन से बाहर आता है, साइटोन से पार्ट ऑफ न्यूरॉन है. Now this axon has a covering. The covering is called as न्यूरिलेमा या एक्सोलेमा. उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, the cytoplasm is called as exoplasm. ठीक है. Also called as intracellular fluid. बाहर जो लिक्विड है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. ठीक है. तो यूजुअली अगर हम देखेंगे द इनर पार्ट ऑफ द सेल, सेल के इनर साइड में देखेंगे, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक्सॉन ना. ओके. जनरली अगर हम देखेंगे एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है जिसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, दे आर मोर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड. they are more of negatively charged. एक्सॉन के बाहर जो मॉलिक्यूल्स है जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में है, एक्सॉन के अंदर मतलब इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. आयन उधर ज्यादा रहता है. तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि the balance, there is a balance between the positive and negative. You got it? So inside the cell there is negatively charged ion more of, and outside the cell there is a more of positively charged ion. ठीक है. So this is the balance, and this is normally in the resting membrane potential बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं? resting membrane potential. मतलब रेस्टिंग, रेस्ट ड्यूरिंग रेस्ट करता है ना, नर्व सेल या मसल सेल, कोई भी एकदम आराम से है, रेस्ट पे है, कुछ काम नहीं कर रहे, तभी इनसाइड नेगेटिव रहता है और आउटसाइड पॉजिटिव रहता है. इनसाइड नेगेटिव क्यों रहता है? Why inside negative? Because of more of negatively charged ion. Why it is? Because of more of negatively charged ion. Because of negatively
charged ions. Outside positive. Why it is positive? Because extracellular fluid contains more of positively charged ions. ठीक है, तो I repeat, what happens inside the cell generally, the resting membrane potential inside the cell, that is the intracellular fluid, that is the exoplasm, if it is exon, contains more of negatively charged ion. Outside the cell, that is ये inside था, outside the cell, that is the extracellular fluid, जो हमने इसके पहले लिखा था, it contains more of positively charged ion, more of positively charged ion. So due to this, what happens? It is usually positively charged. There is a balance between the negative charge and positive charge. Always it is the same. And so that one neutral रहेगा. Resting में neutral है. Inside negative, outside positive. There is no potential difference. है ना? There is no potential difference. Now अभी क्या होता है? ये copy कर लो पहले. Copy this part. Now transmission of nerve impulse. ये जो नर्व इम्पल्स है वो कैसे पास ऑन होता है? बहुत सिंपल सी तरीका है. आई टेल यू. देखो बच्चे लोग, दिस इज द लॉन्ग नर्व. लंबा है, काफी लंबा है. इट हैज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड एक्सॉन है तो माइलिन शीथ. ओके, माइलिन शीथ. अभी जस्ट हमने क्या किया था? इनसाइड पॉजिटिव, नहीं नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव. करेक्ट, एक बैलेंस रहता है. नाउ ये जो मोमेंट ऑफ आयंस है, इसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है और बाहर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन. ये जब आयन सेल के अंदर जाता है और सेल से बाहर आता है, जिसके वजह से जो परमिएबिलिटी है वो बदल जाता है. दैट मोर ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड आयन कम्स आउट. ज्यादातर नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो बाहर आ जाता है. ठीक है, एंड फ्यू पॉजिटिवली चार्ज आयन गोज इन. मतलब अगर हम देखेंगे, या फिर एक दूसरा तरीके से इमेजिन करो कि इसका अंदर का नेगेटिव चार्जेस बाहर आ गए. नेगेटिव चार्जेस बाहर आ रहे हैं. तो नेगेटिव चार्जेस अगर बाहर आ रहे हैं तो अल्टीमेटली अंदर क्या होगा? नेगेटिविटी कम हो जाएगा और बाहर नेगेटिविटी बढ़ जाएगा. या फिर दूसरे तरीके से इमेजिन करो कि बाहर से पॉजिटिविटी अंदर चले जाएगा. बाहर से अगर अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन जाएगा तो अंदर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का पॉजिटिव. जब बाहर का पॉजिटिव कम हो जाएगा तो बाहर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा. आई होप यू आर गेटिंग इट. मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सेल के अंदर से अगर समझो नेगेटिव चार्ज बाहर चला गया तो अंदर क्या हो गया? अपने आप. या फिर बाहर से पॉजिटिवली चार्ज अंदर चला गया तो बाहर क्या हो जाएगा? नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव. डिड यू गेट दिस? ओके. Yes, sir. Okay, good. Let's go ahead. Transmission of nerve impulse. The neurons are the cells with some special features. क्या बोल रहे हैं? न्यूरॉन्स वो सेल्स है और उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. ठीक है, इट हैज सम स्पेशल फीचर. द सेल्स कैन बी एक्साइटेड. एक्साइटेड ना, तुम लोग कैसा एक्साइटमेंट में आ जाते हो? एग्जाम्पल, चलो अनलॉकडाउन, लॉकडाउन खुल जाएगा, सबको कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्लासेस में जाना पड़ेगा, और डे 1 में क्लासेस में जाना है. पहले दिन कितना एक्साइटमेंट रहेगा. पहला दिन है, खाली पहला दिन. ओके, बाद में कंटिन्यू रहेगा तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है. ठीक है, तो पहला दिन कितना एक्साइटमेंट होगा. या फिर समझो मम्मी बोलेंगे बेटा अनलॉक हो गया, चलो घूम के आते हैं, गोवा जाते हैं.
माथेरान जाते हैं, महाबलेश्वर जाते हैं, नजदीक का बात कर रहा हूँ। हाँ, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, बहुत बड़ी बात हो गई, बट वो एक्साइटेशन, वो एक्साइटमेंट होता है, that you feel happiness, that is also the cells can be excited. You got it? The brain cells got excited. You feel sad, that is also an excitement. Sadness is also a type of excitement. Emotionally disturbance is also a type of excitement. The nerve impulse is a wave. क्या है nerve impulse? एक wave है. Wave मालूम है? Wave एक thread है. तुमने ये स्टडी किया रहेगा. There is a chapter stationary waves or standing waves. ये वेव यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट की तरफ गया और यहाँ पे समझो वॉल है, तो वही वेव्स रिटर्न आता है. ओके, वो वेव रिटर्न आया है, रिटर्न आया है, तो क्या हो गया? स्टैंडिंग वेव्स, लूप बन गया ना, इसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स. तो वो बोलना चाहता है बहुत सिंपल वर्ड्स में, डिस्टरबेंस. वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस होता है. वेव कोई पार्टिकल नहीं होता है, इट इज अ डिस्टरबेंस. वैसे ही हम लोगों के बॉडी में देयर इज अ डिस्टरबेंस इन द न्यूरॉन प्रोड्यूस होता है, जिससे इंफॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस चला जाता है. आई नो मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बट यही राइट तरीका है सिखाने का. ठीक है? The nerve impulse is a wave of bioelectrical or electrochemical disturbance passing along the neuron. The transmission of nerve impulse along the long nerve fiber, axon or tube is the result of electrical charges across the neuronal membrane during conduction of an excitation. Each neuron has a charged cellular membrane. हर एक न्यूरॉन में क्या होता है? एक चार्ज्ड सेलुलर मेम्ब्रेन. हमने किया था, अभी स्टडी किया था, चार्ज्ड मेम्ब्रेन, इनसाइड नेगेटिव, आउटसाइड पॉजिटिव. आई होप यू आर गेटिंग इट. Each neuron has a charged cellular membrane with a voltage which is different on the outer and the inner side of the membrane. Inside voltage is negative charges and outside voltage उसका अलग है, that is positive charged ions. The membrane separates the outer and inner solution. बराबर है? जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या करता है? दोनों सॉल्यूशन को, आउटर सॉल्यूशन को और इनर सॉल्यूशन को सेपरेट करता है. ओके, वो सेपरेट करता है. Okay, of this okay, the plasma membrane separate the outer and inner solution of different chemical compound have approximately the same total number of ions. मतलब जितना अंदर number of ions है उतना ही बाहर भी रहेगा. The external tissue मतलब सेल के बाहर has both sodium ion. 1 second, उसमें क्या है? सोडियम आयन. अरे यार आगे गया, 1 सेकेंड. The external tissue fluid has both sodium and potassium ion. सेल के बाहर, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम ज्यादा होता है, बट देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम. सेल के बाहर ज्यादा क्या रहता है? सोडियम आयन रहता है एंड क्लोराइड आयन. ठीक है, बट देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन. ये याद रख लो, सेल के बाहर ज्यादातर सोडियम और क्लोराइड आयन रहते हैं. Will go ahead. While potassium ion is predominant within the fiber or in the intracellular fluid. सेल के अंदर फ्लूइड है जो मैंने बताया था, एक्सोप्लाज्म, याद आ रहा है? उसके अंदर ज्यादातर पोटेशियम आयन रहेगा. सेल के बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, दोनों सोडियम एंड पोटेशियम है, बट ज्यादा सोडियम है. और सेल के अंदर ज्यादा सोडियम और क्लोराइड है, और सेल के अंदर ज्यादातर पोटेशियम होता है. ठीक है? दिस कंडीशन
of resting nerve is called as a polarized state. इसको क्या बोलते हैं? Resting membrane या फिर polarized state. It is established by maintaining the excess of sodium on the outside. ठीक है, ये कैसे मेंटेन किया जाता है? बाहर ज्यादा सोडियम रहता है, ऑन द इनसाइड देयर इज एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयन। अब दोनों के दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, वेदर सोडियम हो या पोटेशियम, बट जितना सोडियम बाहर है उतना ही पोटेशियम अंदर है। विद लार्ज चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, अंदर क्या होता है? सेल के अंदर ज्यादा प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं और नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए सेल के अंदर ही रहता है ना, दैट्स व्हाई वो नेगेटिव चार्ज है। Some amount of sodium and potassium ion are always leaked across the membrane. जो मेम्ब्रेन है उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम लीक होते ही रहते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। हमेशा इसको टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल के अंदर या बाहर कुछ अमाउंट ऑफ सोडियम और पोटेशियम लीक होते रहते हैं हमेशा, एंड इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप in the membrane actively stores the ions in the appropriate site. Ions अपने साइड पे कुछ membrane को स्टोर करके ions को स्टोर करके रखता है, ठीक है, against the concentration and electrochemical gradient. Against the concentration gradient मतलब देखो ना, सोडियम बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, ठीक है, तो हो सकता है सोडियम अंदर आ जाए। अगर अंदर कम है और बाहर, अंदर ज्यादा है और बाहर कम है, या अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, देखो सोडियम समझो अंदर कम है और बाहर ज्यादा है, तो फ्रॉम मोर टू हायर जाना चाहिए ना। चलो मैं इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, सोडियम अंदर ज्यादा है, अभी एक्चुअली तो कम रहता है, इमेजिन करो मोर है, ओके, और बाहर सोडियम कम है, तो एज पर लॉ ऑफ डिफ्यूजन अंदर से बाहर आना चाहिए। अगर समझो और सोडियम अंदर जा रहा है तो मेहनत है ना, ये एक्टिव है ना, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में आ रहा है। व्हाट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? तो क्या लिखा है? सोडियम इज इलेक्ट्रोकेमिकल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसका मीनिंग मतलब सोडियम अंदर ऑलरेडी ज्यादा है, और तो एज पर लॉ अंदर से बाहर आना चाहिए, लेकिन फिर भी और सोडियम अंदर जा रहा है। अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो इट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको बोलते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। सोडियम इज बीइंग फोर्स्ड आउट एंड पोटेशियम इज बीइंग फोर्स्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन। ऐसे में सोडियम को फोर्सफुली क्या कर रहा है? बाहर निकाल रहे हैं, और फोर्सफुली पोटेशियम को अंदर लिया जा रहा है। फोर्स के लिए क्या होता है? एनर्जी चाहिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोडियम पोटेशियम पंप और एक्सचेंज पंप, ठीक है। This active process requires energy, ATP. Energy क्या चाहिए? In the form of ATP. The difference in the distribution of the sodium and potassium ion on the two sides of the membrane produce a potential difference of -50 to -100 millivolt. Average निकालेंगे तो -70 millivolt. ये जो potential difference है, it is -70 millivolt on an average, ठीक है। This potential difference is seen in the resting nerve cell, is called as a resting potential, that is -70 millivolt. मैंने बताया था resting muscles, okay, nerve fiber या muscle जो भी है, and mainly due to permeability of the resting membrane, which is much more permeable to potassium than to sodium. अब ये जो membrane है, it is more permeable to, क्या देखो clearly लिखा है, इसको underline करो, you have a textbook. This is mainly differential membrane of resting membrane potential, which is more permeable to potassium than to sodium. तो जो membrane है वो किसको ज्यादा permeable है, किसको ज्यादा absorb करता है?
पोटेशियम को देन सोडियम को, इसके लिए सेल के अंदर ज्यादा कौन है? पोटेशियम है। वापस रिपीट करता हूँ, सेल के अंदर कौन ज्यादा है? पोटेशियम है। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में, एक्सोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में कौन ज्यादा है? सोडियम है कि पोटेशियम है? पोटेशियम है। क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल, वो ज्यादातर सोडियम को ही अपने अंदर लेता है। जनरली सॉरी, पोटेशियम को अंदर लेता है, मैंने गलती से सोडियम बोल दिया, वो पोटेशियम को अंदर लेता है। अगर समझो कि सोडियम को अंदर लेने लग गया ज्यादा, तो योर ब्लड प्रेशर रेजेस, हाई बीपी चालू, इसके लिए बोलते हैं नमक कम खाओ। ओके, दिस रिजल्ट्स इन स्लाइटली मोर पोटेशियम डिफ्यूजिंग आउट देन सोडियम मूविंग इनसाइड, causing slight difference in polarity। क्या बोलता है? अगर सोडियम अंदर जाता है तो डिफरेंस, पोलैरिटी में डिफरेंस आ जाता है। Also, like negatively charged protein and nucleic acid inside the cell make overall the cell negative। भले पोटेशियम अंदर रहेगा तो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जो होते हैं, कौन है यहाँ पे? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, उसको सेल को अंदर नेगेटिविटी रखते हैं ऑन द इनसाइड एंड पॉजिटिव आउटसाइड। क्यों? बाहर पॉजिटिव इज मोर ऑफ पोटेशियम, सॉरी सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम दोनों की वजह से। बाहर तो दोनों होते हैं बट ज्यादातर सोडियम होते हैं, क्योंकि पोटेशियम को सेल अपने अंदर ले लेता है खींच के। ओके, वापस मैं रिपीट करता हूँ, देखो सेल के अंदर ऑलरेडी पोटेशियम ज्यादा है, ऑलरेडी ज्यादा है, फिर भी वो पोटेशियम को अपने अंदर लेके जाता है। इट इज अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बराबर है, इसको एनर्जी लगता है। ओके, the nerve membrane not only has a leakage channel but also has many gated channels for sodium potassium। now ये gated channels क्या होते हैं? तुम लोगों ने पहले पढ़ा है 11th में, सेल, a cell has a cell membrane, cell membrane according to Nicholson and Singer, ये मैंने सिखाया था सेल मेम्ब्रेन वाला चैप्टर। it is made up of phospholipid bilayer। सेल का जो मेम्ब्रेन का छोटा सा पार्ट है, वो बाहर क्या रहता है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये फॉस्फोलिपिड है, ये पूरा लिपिड है, फैट है। ओके, और ये देखो मेड अप ऑफ, ये हेड होता है, ये हेड है, और ये नीचे के दोनों क्या होते हैं? टेल होते हैं, मैंने बताया था ये टेल होते हैं ना। इसके बाहर जो प्रोटीन रहते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ टनल प्रोटीन होते हैं जो अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, ये प्रोटीन से, ये गेट है, ये प्रोटीन जो है वो गेट जैसा काम करता है, और इसके बीच में से पोटेशियम को अंदर लेता है, पोटेशियम अंदर आता है, सोडियम बाहर जाता है। समझ में है? तो बहुत बार क्या होता है, ये गेट से ही अंदर जाना और बाहर आना होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट। ओके, सो क्या लिखा है? These are also called as voltage gated channels। ये voltage gated channels बोलते हैं। These channels enable the neuron to change its membrane potential to active potential in the response to a stimulus। The sodium potassium gated channels are separated, so transport of both the ions separately done। सोडियम अंदर जाना या बाहर जाना, पोटेशियम अंदर आना या बाहर जाना, ये अलग अलग हो सकता है, झगड़ा नहीं रहेगा, एक जगह से दोनों जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो चैनल से हेल्प हो जाता है। These channels enable the neuron to change its membrane potential to actively potential in a response to stimulus। The sodium potassium channels, gated channels, are separate, so the transport of both the ions is done separately। However, during resting potential, both these gates are closed। Resting में क्या होता है? दोनों गेट क्लोज रहते हैं, बंद रहते हैं, and the membrane
resting potential is maintained. जब दोनों गेट बंद हो जाता है, क्योंकि जब दोनों जगह पे इक्वल आ गया पोलैरिटी, अंदर जितना नेगेटिव है बाहर उतना ही पॉजिटिव है, तो ये गेट क्लोज हो जाता है. I would advise you to read, okay, the impulse, nerve impulse. All of you look at this diagram. This diagram, there are 3 diagrams. First diagram में क्या दिया है? You can see that negatively organic ions. Organic ions मतलब proteins, organic molecule, DNA, RNA, that is nucleic acid. और ये दिया है resting exon, जब वो rest करता है. Generally, you can see inside there is a negative, outside there is a positive. You can see sodium goes in, potassium comes out. You can also see potassium goes in. यहाँ पे देखो क्या दिया है at this stage. पोटेशियम बाहर आता है और सोडियम अंदर जाता है. या फिर यहाँ से भी देखो पोटेशियम बाहर आता है, सोडियम अंदर जाता है. बट एट अ टाइम 3 सोडियम अंदर जाता है. कितना सोडियम? 3 सोडियम. और कितना पोटेशियम बाहर आता है? 2 पोटेशियम. तो अंदर से 2 पॉजिटिव आ रहा है और अंदर 3 पॉजिटिव जा रहा है. Did you get it? So inside automatically positive charge develop हो जाता है. Excited zone. ये क्या है? Depolarized state. देखो inside positive बन गया and outside negative charge बन गया. You can see इसको बोलते हैं depolarized state. Inside positively charge हो गया और outside negative. Now ये रीपोलराइज हो गया, मतलब ये वापस जैसा पहला था वैसा हो गया. ये हाँ रीपोलराइज, वापस पहली स्टेज में आ गया. देखो जैसा रेस्टिंग था ना वैसा. ठीक है ना. अभी लेकिन इसका क्या है? पोलराइजेशन जो यहाँ पे था अब वो यहाँ पे आ गया. यू कैन सी इनसाइड पॉजिटिव, आउटसाइड नेगेटिव. ठीक है, तो वापस ये यही चीज यहाँ पे आएगा. ऐसा करते करते इंफॉर्मेशन jumps from one place to another place. वो इम्पल्स है ना, मैसेज एकदम फास्ट ट्रेवल करता है, इस तरीके से ट्रेवल करता है. तो आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस डायग्राम. जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. जो नर्व इम्पल्स जो ब्रेन से मैसेज बॉडी पे जाता है, ऑर्गन पे, या ऑर्गन से मैसेज ब्रेन तक जाता है, वो जनरेट कैसे होता है? हाउ डज इट प्रोड्यूस्ड? वो कैसे डेवलप होता है? ठीक है, और वो कैसे इतने फास्ट ब्रेन में जाता है, इतने फास्ट ब्रेन से रिस्पॉन्स आता है, कैसे होता है? ये सब चीज हम लोग, ये जो अभी तक हम लोगों ने खिचड़ी पढ़ा उसके बेस पे है. पहला है डीपोलराइजेशन. क्या है पहला पॉइंट? डीपोलराइजेशन. The origin and maintenance of resting potential depends on the original perfect state. Any change, पहला perfect state रहता है, that is the minus inside and outside positive. Any change or the disturbance to the membrane will cause, कोई भी अगर changes होता है, disturbance होता है, it will cause sodium ion to enter into the cell membrane. Cell membrane से sodium ion अंदर जाएगा and lower the potential difference lesser than minus 70 millivolt. माइनस में इसमें प्लस डालेंगे तो क्या कम हो जाएगा और ना, एंड वो माइनस 40 माइनस 30 पे चले जाएगा. ओके, नाउ दिस मेक्स द मेम्ब्रेन मोर परमिएबल टू सोडियम. इससे क्या आएगा? मेम्ब्रेन सोडियम को ज्यादा परमिएबल हो जाएगा. और नॉर्मली क्या रहता है? पोटेशियम को परमिएबल रहता है. नॉर्मली इट इज परमिएबल टू पोटेशियम, बट ये क्या हो गया? सोडियम को परमिएबल. So there will be rapid influx. Influx मतलब going inside of the sodium ion. This property is a peculiar of nerve membrane. मतलब
the membrane covering the nerve. Did you understand this paragraph? Very important paragraph. The voltage gated sodium ions and potassium ion, मतलब sodium potassium ion channel are special in two ways. ये दो तरीके से special होते हैं. They can change the potential difference of the membrane as per the stimulus received. जो stimulus उनको मिला है, जो information मिला है, जिससे वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग potential difference बदल सकते हैं, change कर सकते हैं. And also the gates operate separately and self closing. जो गेट होते हैं, मैंने बताया था प्रोटीन के गेट होते हैं, जिससे सोडियम अंदर जाने वाला गेट अलग रहेगा और पोटेशियम का बाहर आने का गेट अलग रहेगा या अंदर जाने का गेट अलग रहेगा. तो वो ऑपरेट भी अपने आप ओपन हो जाते हैं, अपने आप क्लोज हो जाते हैं. ठीक है. ड्यूरिंग रेस्टिंग बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड. रेस्टिंग में दोनों गेट बंद रहते हैं एंड रेस्टिंग पोटेंशियल इज मेंटेन्ड. However, during depolarization, the sodium ions gate opens, but not the gate of potassium. जैसा डीपोलराइज होता है तो सोडियम का गेट ओपन रहता है, बट पोटेशियम का ओपन नहीं होता है. सोडियम का ओपन होने की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम चला जाता है. सेल के अंदर सोडियम गया तो सोडियम का क्या चार्ज है, प्लस है. वो अंदर क्या करेगा, पॉजिटिविटी बढ़ाएगा. वापस रिपीट करता हूं मैं तुमको, क्या बोल रहा है, जनरली अंदर नेगेटिव रहता है, बाहर पॉजिटिव रहता है. बाहर सोडियम बाहर से सोडियम क्या होता है, अंदर जाने लगता है. When sodium goes inside, अंदर क्या बनाएगा, वो पॉजिटिविटी बनाएगा. और बाहर से अगर सोडियम कम हो रहा है तो बाहर पॉजिटिव कम हो जाएगा. समझ में आया? तो ये स्टेज आ जाएगा. वापस रिपीट करते हैं. ड्यूरिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोथ द गेट्स आर क्लोज्ड and resting potential is maintained. However, due to depolarization, sodium gates are open but not the potassium gates. सोडियम गेट ओपन होता है लेकिन पोटेशियम गेट ओपन नहीं होता है, जिसकी वजह से सोडियम रश इनटू द एक्सॉन, सेल के अंदर जाता है. एंटरिंग अबाउट डिपोलराइजेशन, ऑपोजिट ऑफ पोलैरिटी, मतलब बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव, अभी अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव. ओके, ये वाला स्टेज. ओके, फिर किधर गया, ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ECF becomes negative. यही मैंने बताया. With respect to the inner membrane which become electropositive, the value of action potential is plus 30 to plus 60 millivolt. मतलब जो -70 था उसमें ऐड करेंगे plus 30 to plus 60 millivolt मिल जाएगा. This triggers the depolarization in the next part, while itself starts going to repolarization. वो क्या बोलता है, इसकी वजह से नेक्स्ट पार्ट में डीपोलराइजेशन होता है. नेक्स्ट पार्ट में मतलब यहाँ से देखो, यहाँ पे डीपोलराइजेशन था, यहाँ पे आ गया. देखो डायग्राम. ठीक है, ये यहाँ से डीपोलराइजेशन यहाँ पे आ गया. देखो अभी ये डीपोलराइज हो गया है ना, और ये वापस अपने आप डीपोलराइज हो जाएगा. This triggers depolarization in the next part while itself starts to repolarization. I hope मैंने एक एक लाइन अच्छे से एक्सप्लेन किया. Change in the polarity from depolarized back to the original state done by the process of repolarization. ठीक है, वापस वो depolarize से अपनी ही जगह पे आ जाना, repolarization. It occurs after a short period called refractory period. मतलब कुछ सेकेंड, कुछ मिली सेकेंड, कुछ समय के बाद वो अपने आप अपनी जगह पे आ जाता है, refractory period. The large number of sodium ion on the inside causes a drop in the permeability of membrane to sodium and at the same time making it more permeable to potassium ion. क्या बोल रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ सोडियम जो अंदर था वो परमेबिलिटी ड्रॉप कर देगा फॉर द सोडियम, और सोडियम को अंदर आने नहीं देगा. एंड एट द सेम टाइम वो क्या करेगा, ज्यादा परमेबल टू पोटेशियम.
अभी सेल के अंदर पोटेशियम आएगा, ठीक है, ओपनिंग द पोटेशियम गेटेड चैनल एंड स्लोली क्लोजिंग सोडियम गेटेड चैनल. अब सोडियम अंदर नहीं आएगा. दिस एक्शन इज लोकलाइज्ड एक्टिविटी. पोटेशियम आयन passes out very rapidly as compared to sodium slow down of sodium entry. पहले क्या बोल रहे हैं, पोटेशियम धीरे धीरे फास्ट बाहर आएगा और सोडियम धीरे धीरे अंदर जाएगा. पहले सोडियम अंदर फटाफट जा रहा था क्योंकि पोटेशियम गेट बंद था. इन दिस पीरियड सोडियम गेट्स आर क्लोज्ड. अभी सोडियम गेट क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम गेट्स ओपन हो जाएगा. इसको बोलते हैं अगेन सोडियम पोटेशियम पंप become operational. This process of producing a wave of stimulus causing depolarization to repolarization repeated continuously up to the end of the axon terminal. ऐसा continuously axon के terminal तक होता है. It is self-propagating. ये मैं तुमको वापस समझाता हूँ. यहाँ पे देखो ये डायग्राम आएगा, नहीं दिया डायग्राम में. अरे 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 नहीं दिया ये डायग्राम. चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ. ठीक है, ये क्या बोलना चाहता है, ये टिल द एंड ऑफ द एक्सॉन, मतलब ये एक्सॉन है, ठीक है, और ये यहाँ पे एंड होता है. इसको कवरिंग है मेड्यूलेटेड नर्व, बराबर है माइलिन शीथ. तो ये एक जगह पे अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव हो गया, तो यहाँ से दूसरी जगह पे जंप करेगा, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे, इस तरीके से हो जाएगा टिल द एंड ऑफ एक्सॉन. वो जो सेंटेंस है ना एंड ऑफ एक्सॉन, उसका मतलब ये था. ठीक है. Now in this period, no sodium gates are closed. Potassium gates are open. अभी सोडियम गेट क्लोज नहीं होएगा. सॉरी, इन दिस पीरियड सोडियम गेट क्लोज रहेगा, पोटेशियम ओपन हो जाएगा. ये पढ़ा था हमने सर. इन मेड्यूलेटेड नर्व मतलब क्या, माइलिन शीथ वाला नर्व. द इंसुलेटिंग फैटी माइलिन शीथ प्रिवेंट्स फ्लो ऑफ आयन बिटवीन एक्सोप्लाज्म एंड ECF. The transport gated channel can operate separately in the region of node of Ranvier, where myelin sheath is absent. वो मैंने बताया एक node of Ranvier से दूसरा. The action potential cannot travel as a wave of membrane depolarization, has to be jumped from node to node. This process is called as saltatory conduction. ये मैंने explain किया था तुमको saltatory method. And the rate is 120 meter per second. देखो tick tick 120 meter. It is faster and continuous then non-modulated 50:1. अगर समझो modulated 50 मीटर गया तो non-modulated 1 मीटर तक जाएगा, बस ज्यादा दूर नहीं जाएगा. ठीक है. Now do you know the sodium potassium pump operate actively by use of carrier for every, मैंने बताया था ये 3 sodium ions pumped out, 2 potassium ions, okay, pumped in. It is electrogenic. Always remember resting membrane potential is -70 millivolt. Sodium potassium pumps out of 3 sodium ion for every potassium pump into the cell. Explain how the impulse transmitted. ये तो तुमको पढ़ा है तुमने. ये देखो बहुत सिंपल है. Application of stimulus on the resting membrane potential. उसकी वजह से क्या होगा, permeability of the membrane changes and it becomes more permeable to sodium. The sodium ion diffuses into the neuron from extracellular fluid. Short में दिए पूरा. The number of positive ions inside increases. Membrane potential changes from -70 millivolt to +30 millivolt. This change in potential permeability is called action potential. Since the polarity has reversed from negative outside on outside and positive on inside, wherever it is also called as depolarization. Repolarization at the peak level of action potential 30 millivolt, the sodium ion channels closes, potassium gates open, the membrane become more permeable to now potassium ion diffuse out, potassium bahar jayega, the inside membrane become less positive, then positive become negative. Once again, exoplasm inside become negatively charged and ECF become positively charged. Exoplasm is your cytoplasm of the axon. ठीक है, just go through it. मुझे बताओ जरा क्या डाउट है इसमें, ये पेज में.